There are students who are done with their BCom. There are students who are pursuing chartered accountancy, and there are students who are done with their chartered accountant. That's great. Thanks a lot, guys. We'll just quickly start. I hope my screen is visible to everyone. Can you just pin in the chat once if my screen is visible? Perfect. So this is a little bit about me. So I am into the industry from past 7 years almost. I have counseled more than 1 lakh plus students. Yeah. So firstly, we are talking about what exactly ACCA is. So many a times I have seen students being confused. What exactly ACCA is, or this is a new term. कुछ लोग आकर बोलते हैं अक्का क्या होता है, या क्या प्रोग्राम है एग्जैक्टली ये, कैसे हमारा, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करेंगे, हम क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं, तो और इंडिया में इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्टेड है. तो मैं सबसे पहले एक चीज बताऊं, ACCA was established into the industry in 1904, which is almost 45 years prior than a chartered accountant. 180 plus countries में आपका recognized है. Currently, if I talk about, there are approximately around 2,50,000 plus students जो कि ACCA qualify कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, and 5 lakh plus future aspirants है अपने ACCA में. Just like an Indian chartered accountant, ACCA में अपने 3 levels होते हैं, wherein we cover the knowledge level at the start, wherein we have the 3 papers which are like business technology, management accounting, and financial accounting. Then we have the skill level, which is consisting of 6 papers: corporate and business law, performance management, taxation, FR, audit and insurance, and financial management. Then we have the strategic professional level, which is of 6 papers, out of which 2 are essential papers, which are our SPL, SBR, and then there are 4 papers which are AFM, APM, ATX, and AAA, out of which you just need to give 2 modules. One more thing, guys, I just want to tell what exactly you can expect from this webinar. I can see there are a few candidates who have just recently joined this webinar. So in the first 10 minutes, I will be just covering about what exactly ACCA is, what you can expect from SSCI, how ACCA can be a great career option for you, right? How ACCA is different from the other industry programs. Post that, in the another 15 to 20 minutes, we will be discussing about, right, whether ACCA is a right path for you or not. That is very important to understand. मतलब इस वेबिनार के बाद one thing I can assure you कि आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेरे को ACCA करना है या नहीं करना, whether this is right for me or not, right? लास्ट के अपने 15 से 20 मिनट में आई विल बी आस्किंग द Q&As. आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, वेदर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेदर आप बीकॉम परस्यू कर रहे हो, मेरे को कितना एग्जामिशन मिलेगा, वेदर मैं सीए फाइनल में मैंने अपना फाइनल का एग्जाम दिया बट अनफॉर्चुनेटली और मैं अपना क्लियर नहीं कर पाया, तो क्या मैं सर अभी भी 7, 8, 9 पेपर का एग्जामिशन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, क्या फीस रहता है अपना, वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग. और लास्ट में अगर किसी को मेरे से डायरेक्टली 1-on-1 बात भी करना हो तो हम वो वाला ऑप्शन भी अपना इनेबल करेंगे लास्ट में. Right? Let's get back to the presentation once. So altogether there are 13 papers in ACCA. ACCA में एक और सबसे बेस्ट बात क्या है कि ACCA पूरे के पूरे प्रोग्राम में 4 लेवल्स होते हैं. So the first level is, after qualifying the first 2 levels, which is knowledge level and skill level, आपका डिजिग्नेशन इंडस्ट्री में बनता है ACCA पार्ट क्वालिफाइड. मतलब आप अपने लिटरली नाम के आगे, जैसे अगर मैं शुभांकर की बात करूं तो ही कैन राइट हिज नेम एज ACCA पार्ट क्वालिफाइड शुभांकर दास. जैसे ही वो अपना प्रोफेशनल लेवल कंप्लीट कर लें, ही विल बी बिकमिंग एन ACCA एफिलिएट. तो पूरा नाम हो जाएगा ACCA एफिलिएट शुभांकर दास, राइट? उसके बाद ACCA क्या डिमांड करता है कि आप मेरे को 3 साल का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस दे दो अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग फील्ड में, राइट? अब ये एक्सपीरियंस कोई भी हो आपका पोस्ट 12th क्लास, वो आपका सारे का सारा एक्सपीरियंस काउंटेड है. देन यू आर एक्चुअली बिकमिंग एन ACCA मेंबर और आपको ग्लोबल साइनिंग अथॉरिटी भी मिलती है इसके बेसिस के ऊपर. 5 साल ACCA एज एन ACCA मेंबर सर्व करने के बाद यू आर बिकमिंग एन FCCA, विच इज अ फेलो मेंबर ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स. तो ACCA एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आपका कहीं ना कहीं आपको करियर के अगले 10 to 15 ईयर्स तक सोचना ही नहीं है. आपका डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली ACCA प्रमोट करके दे रहा है. साइमल्टेनियसली आपका जो कंपनी है वो आपको एक्सेप्ट करता है और साइमल्टेनियसली आपके प्रमोशंस कीप्स ऑन हैपनिंग. These are some of the companies जो कि टॉप ACCA को हायर करती हैं, राइट? जिसमें आपके बिग 4 आगे डेफिनेटली डेलॉयट, PwC, EY, KPMG. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका Amazon, Microsoft, Accenture, Shell, Citi, आपके HSBC.
मेरे को एक बार जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, एक बार कमेंट करेंगे, जस्ट मे बी जस्ट ड्रॉप इन सीए ओवर देयर. परफेक्ट. 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 ठीक है. चलो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे, ठीक है. आई होप सबने बिग फोर का नाम सुना होगा, पीडब्ल्यूसी, वाई, डिलॉयट, केपीएमजी, राइट. आपके अकॉर्डिंगली इनके जो क्लाइंट्स हैं, राइट, हुम दे ऑडिट, बिग फोर ऑडिटिंग फर्म्स बोला जाता है इनको, वो कौन सी कंट्री के होते हैं मेजरली, या मेनली कौन सी कंट्री से इनके क्लाइंट्स. एक बार चैट बॉक्स में इफ यू गाइस कैन राइट इट. जो भी आ रहा है मन में, इट्स कंप्लीटली फाइन, नो वन इज जजिंग यू ओवर हियर. अर्पन दास has written India, US, US, UK, UK, India, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्रीज. ओके. चलो, अब थोड़ा सा लॉजिकल बात करते हैं. अब अगर दुनिया की सबसे चार बड़ी ऑडिटिंग फर्म्स हैं, तो डेफिनेटली चार्जेस भी बहुत हाई होंगे इनके, राइट. तो अनलेस अपने इंडिया में टाटा, अंबानी, अडानी, महिंद्रा ग्रुप अपने बात करें, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स अपने सुनते हैं हमेशा इंडिया में, राइट, अनलेस वो ना हो, तो बहुत रेयर कंपनीज है जो कहीं ना कहीं बिग फोर को ऑडिट के लिए अपने हायर कर सकते हैं, क्योंकि चार्जेस बहुत ज्यादा ऊपर के साइड के ऊपर है. वहीं पर अगर अपने ग्लोबल कंपनीज की बात करें, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आईटी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स की बात करूं, सो दे दोज आर मेजॉरिली सिचुएटेड इन यूएस या कनाडा अपना. अगर मैं प्रॉप टेक की बात करूं, तो आपका मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में सिचुएटेड है, जो हेडक्वार्टर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ज्यादातर कहीं ना कहीं आपका यूरोप में सेटल्ड है, लाइक जर्मनी. फूड टेक की बात करूं, बहुत सारा पार्ट आपका कहीं ना कहीं जो हेडक्वार्टर्स है वो ऑस्ट्रेलिया में, आपका यूरोप में आता है कहीं ना कहीं. नाउ यू गाइस टेल मी, अगर इन कंपनीज को ऑडिट अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स का करना है, सो दे विल प्रेफर एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट. जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स वंस, जो भी मन में आ रहा है मतलब. ग्लोबल, ग्लोबल, ग्लोबल. So I can see almost everyone has written global chartered accountant. So this is the real demand of ACCA right now into the industry, into the market. कहीं ना कहीं इट इज नॉट लाइक, देखो, एक और चीज चलो बताता हूँ, शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं. जैसे अपना इंडिया में आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ऑलमोस्ट एवरी कंट्री का खुद का अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है. जैसे यूएस में अपने बोल देते हैं सीपीए, ऑस्ट्रेलिया में भी अपना सीपीए चलता है, राइट. इवन अगर मैं बात करूं यूके की भी, वहां पर भी क्या था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स. ये प्री ब्रेग्जिट की बात है, मतलब जब अपना यूरोप, जो अपना यूके है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ यूरोप ओनली, ठीक है. पोस्ट ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट इज ब्रिटेन का एग्जिट यूरोप से, ठीक है. उसके बाद एसीसीए इंडस्ट्री में आया, विच वाज इन 1904. उसके बाद जिस भी कंट्री के पास या तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कमी है, ठीक है, या उन्हें लगता है कि हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी मतलब कि इतना काम है कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, सो व्हाट दोस पर्टिकुलर कंट्रीज डू, दे साइन एन एमओयू विद एसीसीए ग्लोबल बोर्ड, और वहां पर उनको रिकॉग्निशन मिलता है. सो एसीसीए इज रिकॉग्नाइज्ड. आपका अगर आपको यूएई में जाना है, आपको दुबई में जाना है, आपको किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाना है, वहां पर कहीं ना कहीं एसीसीए की कंप्लीट वैल्यू, जस्ट लाइक एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, ठीक है. अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, तो क्या एसीसीए जो अपना है, क्या वो इंडिया में अपना फर्म ओपन कर सकता है, जस्ट लाइक एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस नो में एक बार आंसर कर दो प्लीज. यस, नो, यस. So most of you, I can see, has written yes, right? So the answer is no. एक एसीसीए इंडिया में ऑडिट एग्जैक्टली नहीं कर सकता. दे कैन हेल्प, दे कैन प्रोवाइड 90% ऑफ द सर्विसेज व्हाट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डज, राइट. बट जो फाइनल में साइनिंग अथॉरिटी है, दैट इज विद एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली, ठीक है. नाउ द आंसर इज क्रिस्टल क्लियर. इफ
मेरे को इंडिया में रहकर अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ओपन करनी है, देन सीए इज द राइट पाथ फॉर मी। बट अगर मेरे को ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म्स में काम करना है या मेरे को बिग फोर में काम करना है, तो कहीं ना कहीं मेरे को एसीसी की तरफ जाना चाहिए। आई होप आई एम बीइंग क्लियर इन दिस रिगार्ड। वापिस अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं थोड़ा। These are some of the rules what we have mentioned over here, which are like your financial analyst, management accounting, auditor, tax consultant, risk analyst, FP&A analyst, internal auditor, business finance partner, financial controller, investment analyst. Some of the rules we have mentioned and their entry level rules. But kahin na kahin, if I talk about very realistically, 9 paper ACC clear करने के बाद a student can expect a package in between 5 to 6 or maybe 5 to 7 lakhs, right? A student who is done with their 13 papers, on an average, they can start as a fresher in between 10 to 12 lakhs ka package. A student who is an ACCA member, right, who gets a signing authority, in terms of salary, it is in between 18 to 20 lakhs. But yes, the earning potential is exponential. There is no limit to it. Let's say if you have just 3, 4 odd clients from international countries, you cannot even imagine how much they are ready to pay you if you're doing the proper audit of their companies. This is a little bit about SSCI. I believe most of the students who have joined this particular webinar, they knows SSCI, right? We are into the industry from past 30 years. We have counsel, we have trained more than 10 lakh plus students across CFA, FRM, CA, ACCA. The company was founded by Mr. Sanjay Saraf sir, right? I need not to introduce him. Everyone knows about him. This is some of our alumni, the companies they are working at. Now, this is very important, right? Save up to 90,000 with SSCI in case if someone wants to enroll for an ACCA program with SSCI. So Indra has asked one question, क्या ACCA फॉरेन में फॉर्म खोल सकता है? इंदिरा, यस। ACCA का जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में साइनिंग अथॉरिटी है, आपका यूरोपियन कंट्रीज में आपका साइनिंग अथॉरिटी है, जिस जिस कंट्री में उनका साइनिंग अथॉरिटी है वहां पर वो फॉर्म खोल सकता है प्रॉपर। इवन इंडिया में भी अगर चाहे ACCA, so I'll just tell you a realistic story. What an ACCA and a CA does, right? वो अपना एक इंडियन ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म करके ओपन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सपोज करो मेरा शुभांकर मान के चलो, मैं एसीसी हूं, शुभांकर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, हम दोनों ने एक फर्म ओपन कर दिया। अब मेरे पास कोई इंडियन अकाउंटेंट आया या इंडियन कोई भी ऑडिट के लिए कोई कंपनी आया, तो मैंने क्या करा, मैंने उसको पूरे का पूरा सर्विस दिया। जो फाइनल में साइन है वो मैंने शुभांकर से बाय ऑन कर लिया कि शुभांकर भाई इसके ऊपर मेरे को साइन करके दे दो। सिमिलरली शुभांकर के पास एक इंटरनेशनल क्लाइंट आया, मे बी लेट्स से फ्रॉम यूएस, यूके, आपका किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से है जहां पर मेरी साइनिंग अथॉरिटी है, तो शुभांकर ने उनका सारे का सारा काम कर दिया। देन ही आस्क्ड मी कि प्रथम भाई आप इसके ऊपर साइन कर दोगे, तो आई साइंड इट। सो इट इज लाइक दैट। तो इंडिया में भी ओपन कर सकते हैं, यू कैन ओपन योर ऑफिस। इट्स जस्ट जो इंडिया का फाइनल ऑडिट है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। आई होप आई वॉज एबल टू मेक सेंस इंदिरा एंड यू आर क्लियर अबाउट इट। यहां तक कुछ डाउट? ठीक है, we'll just discuss about how you can save up to 90,000 rupees with SSCI. So ACC अगर मैं बात करूं ना, there are 3 entry levels in ACC. So first one, a student can definitely start from knowledge level. By the way, I hope this is the first time मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को सुना आज तक कि ACC का एलिजिबिलिटी 12th क्लास है, 10th क्लास है, 9th क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं आपने, कोई बोलता है 11th क्लास में स्टार्ट करो, कोई बोलता है बीकॉम के बाद स्टार्ट कर सकते हैं आपने। The actual eligibility to enter into the ACCA is once a student turns 13 years only. जैसे ही एक स्टूडेंट की एज 13 years हो जाती है, they can start writing their ACCA paper. ACCA में बेसिकली 2 रूट होते हैं एक स्टूडेंट के लिए एंटर करने के लिए, वन इज द FIA रूट एंड सेकंड वन इज डायरेक्टली नॉलेज लेवल से। FIA इज नथिंग फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, तो उसमें ये हो जाता है फाउंडेशन इन बिजनेस टेक्नोलॉजी करता है वो, फाउंडेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, फाउंडेशन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट करता है। जस्ट द पेपर नेम चेंज एंड द रेस्ट ऑल दी I'll say 10 पेपर्स रिमेन्स द सेम ओनली। वो उसके बाद लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, अपना सारा वही वाला पाथ फॉलो करेगा, राइट? दिस इज द वन पार्ट। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, इन केस, तो मेरे को एक पोल में एक आंसर आया था बीकॉम परस्यूइंग, इन केस दो स्टूडेंट्स आर परस्यूइंग द बीकॉम from a state central university,
they can straight away claim 5 paper ka conditional exemption. What are those 5 papers? The first 4 paper of ACCA, which are business technology, management accounting, financial accounting, corporate and business law, and the 6th paper, which is taxation. Now, why ACCA are exempting these particular 5 papers? Because these are the 5 papers which you are going to cover in your BCom during your college time. तो ACCA क्या समझ रहे हैं कि इन पर्टिकुलर पेपर्स का नॉलेज तो आपको कॉलेज में मिल ही जाएगा. दैट्स व्हाई यू स्टार्ट राइटिंग द अदर पेपर्स इन ECCA. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिनका बीकॉम हो चुका है ऑलरेडी, डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो क्लेम दिस पर्टिकुलर 5 पेपर का एक्सेप्शन. ठीक है. इसके बाद एक स्टूडेंट जिसने सिर्फ और सिर्फ CA इंटर किया हो, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन ऑल्सो क्लेम 5 पेपर का एग्जेम्पशन. A student who has done BCom plus CA inter, that student can claim 6 paper का exemption. I will be telling you exactly in our Q&A कि कौन सा उसका आप पूरे का पूरा exemption claim कर सकते हो. Not just telling you, I'll be showing you how to check it out as well, right? कि आप खुद से इतने self enabled हो जाओ कि आप आराम से इस चीज को चेक कर पाओ in future. Then a chartered accountant, जिस स्टूडेंट का पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट हो चुका है, that student can literally claim the first 9 paper as exemptions. मतलब उनका नॉलेज और स्किल लेवल पूरे का पूरा एग्जेम्प्टेड है. उनका बिकॉज आर्टिकलशिप हो रखा है, तो वो सेम आर्टिकलशिप वो ACCA में सबमिट कर सकते हैं एज एन वर्क एक्सपीरियंस. उनका 70% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन इन बिकमिंग अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का 70% काम ऑलरेडी हो चुका है. They just need to sit for last 4 papers and just needs to clear it out. That's it. And then they can call themselves as a global chartered accountant directly. ठीक है. नाउ एक और क्वेश्चन उठता है माइंड में कि सर मैंने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में बहुत बार दिया, मतलब बिकॉज मैं डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा बात करता हूँ स्टूडेंट से. आई हैव गिवन 4 अटेम्प्ट्स इन CA फाइनल. मेरे ऑलमोस्ट सारे पेपर क्लियर हो गए, मेरे को 2 में एग्जाम्शन मिल गया है, मेरे सिर्फ एक पेपर बचे सर, ये क्लियर नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर अटक गया हूँ. ठीक है. या फिर FR में अटक गया हूँ, AFM में अटक गया हूँ मैं कहीं ना कहीं, मेरा ग्रुप 1 क्लियर है, ग्रुप 2 क्लियर नहीं है. तो इसका ACCA ने क्या करा है, इवन इफ यू आर परस्यूइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप फाइनल स्टेज के ऊपर हो, अगर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 40+ मार्क्स से ऊपर है, यू कैन क्लेम FR एज एन एग्जेम्पशन इन ACCA. तो हमारे 6 ऑलरेडी CA इंटर के बेसिस के ऊपर एग्जेम्प्टेड थे, BCom प्लस CA इंटर. तो हमारा 7th पेपर FR, अगर हमारा 40+ मार्क्स है CA फाइनल में, वी कैन क्लेम एन एग्जेम्पशन. देन अगर हमारा AFM में, विच आई एम श्योर अगर आपने संजय सर से स्टडी करा है तो डेफिनेटली आपका 40+ मार्क्स आया होगा कहीं ना कहीं. अगर आपका 40+ मार्क्स है तो आप FM भी अपना एग्जाम ले सकते हो ACCA में से. देन अगर आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में आपका 40+ मार्क्स है तो आप अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जामिशन भी ले सकते हो, राइट? तो आइडियली इवन अ CA pursuing student at a final level can claim up to 9 पेपर का एग्जामिशन इन ACCA. ठीक है. आई होप आई वॉज एबल टू मेक सेंस ओवर हियर. तो बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि आप अगर SSCI के थ्रू रजिस्टर करते हो तो आपका जो एग्जामिशन फीस है ACCA में वो काफी ज्यादा कम लगता है. जैसे BCom परस्यूइंग स्टूडेंट का एग्जामिशन फीस नहीं लगता. जो BCom पास आउट हो गया उनको सर्टेन एक डिस्काउंट कूपन कोड दिया जाता है ACCA बोर्ड का, जिसके थ्रू जब वो रजिस्टर करते हैं तो 5 पेपर का एग्जामिशन फीस $484 से कम होकर काफी नीचे आ जाता है आपका. तो स्ट्रेट अवे यू आर सेविंग अराउंड ऑट 45-50,000 इन ACCA बोर्ड फीस. अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे थ्रू रजिस्टर कर रहा है, हु इज ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली रजिस्टर करने से एंड व्हेन दे आर रजिस्टरिंग थ्रू SSCI, उनका कहीं ना कहीं 85,000 to 90,000 रुपीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली सेव होते हैं ACCA बोर्ड फीस में. दैट वी विल बी कवरिंग जब हमारा 1-on-1 काउंसलिंग होगा आपसे. ठीक है. These are 5 ways to secure your seat in case अगर आपको इसी से ज्वाइन करना हो. So this is our help. I'll say the IVR number, which is 75950-53300. Then this is like our website link, right? So you guys can drop a WhatsApp text. You can directly call our counselors as well, who will be connecting you over there. Shubhankar, I want to take the Q&A now, right? Because I have promised everyone I'll be solving out each and every query in this particular session. And then we can open the, I'll say, the whole student, in case if any student wants to unmute themselves and want to speak, we can open after that as well. So for now, we can take the questions and answers right now. Sure, Pratham. Like a lot of questions are asking in the Q&A sections and the chat box as well.
So Karan Gandhi asked, do we get signing authority in India? सो आई होप आई हैव आंसर्ड इट ऑलरेडी, राइट? Yeah. इंडिया में आपको एग्जैक्टली साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलता, बट ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर आपको जाकर अपना फर्म इंटरनेशनली ओपन करना है, यस यू कैन गेट द साइनिंग अथॉरिटी। मलेशिया में मिल सकता है आपको, आपको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मिलता है, आपको यूरोपियन कंट्रीज में मिलता है साइनिंग अथॉरिटी अपना, राइट? इंडिया में अगर आपको स्टिल फर्म ओपन करना है तो यू कैन कोलैबोरेट विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहां पर आप इंडियन क्लाइंट्स को 90% सर्विसेज प्रोवाइड करके लास्ट में साइनिंग अथॉरिटी जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट से ले सकते हो। मैं सीरियसली अगर एक चार्टर्ड सीए फर्म की बात करूं ना, वहां पर जो 90% ऑफ द काम होता है वो कहीं ना कहीं, मतलब आई होप जो सीए इंटर में है इस टाइम पे सीए परस्यू कर रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने आर्टिकलशिप करा है, वही एक्चुअल में पीपल हैं, दोज आर द एक्चुअल आई से बिल्डिंग्स ऑफ अ सीए फर्म, जो कहीं ना कहीं पे बैठकर सारे का सारा काम करते हैं, राइट? तो सारी की सारी सर्विसेज आप दे सकते हैं, बट साइनिंग अथॉरिटी आप सीए से ले सकते हैं। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन टेक द इंटरनेशनल साइनिंग अथॉरिटी फ्रॉम एन ईसीसी स्टूडेंट। Great, Pratham. So Tanishq has asked, like he has cleared fifth attempt. He is in fifth attempt in CA Inter. His group two is clear. Should he drop CA and go for ACCA? See, Tanishq, to answer you, first thing, though, I want to understand whether you have done BCom or not, right? Maybe in case if you can just write it in the chat box right away, I will be able to guide you that. Yes, perfect. So Tanish has written that he has done BCom. So Tanish, one thing, you can claim 5 paper ka exemption, right? In ACCA, which will be your first 4 paper and the 6th paper of ACCA, आपको exemption मिल जाएगा. Now, second part, we can sit one on one maybe after this after this particular webinar, or maybe we can talk one on one as well. आई वुड रिकमेंड यू टू फर्स्टली एनालाइज योर सेल्फ कि हमने सीए को स्टार्ट क्यों किया था, या वेदर हमारा जो भी फेल भी हुआ, मैं पिछले 4 अटेम्प्ट में, 5th अटेम्प्ट में, राइट, उसका क्या स्कोर एकदम पार के ऊपर जाकर मैं फेल हो रहा हूँ, एकदम मतलब देयर इज अ टू मच ऑफ अ गैप, दैट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। थर्ड थिंग, चलो एक और क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क, राइट? शुभंकर, इफ यू कैन जस्ट क्रिएट अ पोल अराउंड इट एज वेल। लेट्स से एक स्टूडेंट है, मेरा एक फ्रेंड है, राइट? व्हाट ही हैज डन, उन्होंने सीए फाउंडेशन का अपना अटेम्प्ट दिया, तो हुआ क्या, इन हिज फर्स्ट पेपर अकाउंट्स उन्होंने स्कोर करा 80 मार्क्स, इन हिज लॉ पेपर ही हैज स्कोर्ड 38 मार्क्स, इन हिज बिजनेस स्टडीज पेपर ही हैज स्कोर्ड अनदर 80 मार्क्स, और जो उनका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का पेपर है अपना क्वांट्स का, देयर आल्सो ही हैज स्कोर्ड 75 प्लस मार्क्स, राइट? सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है इन द चैट बॉक्स ओनली, क्या ये स्टूडेंट पास है या फेल है इन सीए फाउंडेशन? उसके चारों पेपर में मार्क्स है 80, 80, 38 एंड 75। इफ एवरीवन कैन राइट यस और नो, जो भी ओपिनियन है, क्या ये स्टूडेंट पास है सीए फाउंडेशन में या फिर ये स्टूडेंट फेल है सीए फाउंडेशन में, विद अ स्कोर ऑफ 80, 80, 38 एंड 75? Yashvi has written no, Rajesh has written pass, rest everyone can, if you guys can just simply comment yes, no. Parish has written fail, Shruti has written fail. चलो, अब एक पोल करवा रहा हूं मैं, ठीक है? अब आईसीएआई क्या बोलता है, जो मेरा फ्रेंड है ना, उसको जो आईसीएआई ने रिजल्ट दिया वो क्या दिया कि बेटा आप चारों के चारों पेपर में फेल हो, दोबारा से जाओ, चारों पेपर की तैयारी करो और जाकर अपना एग्जाम लिखो दोबारा से सीए फाउंडेशन का। वो बेचारा क्या हुआ, अगली बार फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, राइट? अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, बहुत बार एक ना, दिस इज लाइक अ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी, मान लो इस चीज को, हम जिस चीज को एक बार पास कर लेना हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते उसको, दोबारा से उतनी शिद्दत से हम अपने नहीं पढ़ते बहुत बार। तो हुआ क्या, उसी स्टूडेंट ने क्या करा, इस बार लॉ तो क्लियर कर लिया 53 मार्क्स से, बट कहीं ना कहीं किसी दूसरे पेपर में 38 या 39 मार्क्स आ गया। अगेन जो रिजल्ट आया उसका क्या आया कि स्टूडेंट इज फेल्ड इन ऑल 4 सब्जेक्ट। मेरे को ये जानना है सबका ओपिनियन, क्या आपके अकॉर्डिंगली वो बच्चा चारों पेपर में फेल होना लॉजिकल था या इलॉजिकल था? जस्ट आंसर यस और नो इन अ पोल। शुभंकर, इफ यू कैन जस्ट क्रिएट अ पोल। Yes, I am creating the poll and students are already answering in the like chat box as well. Perfect. So some of you have written illogical, 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 illogical. ठीक है,
Perfect. Yeah, so most of you have answered illogical only. So this is something which does not happen in any abroad paper. अब्रॉड के किसी भी पेपर आप उठा लो, वेदर इट्स सीपीए, वेदर इट्स सीएमए यूएस, आप सीएफए ले लो, चाहे आप बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट आप एसीसी ले लो, राइट, एफआरएम ले लो, आप सीपी ऑस्ट्रेलिया ले लो, कोई भी अगर अपने अब्रॉड पेपर की बात करें ना, अगर आप एक पेपर में फेल हो रहे हो या एक लेवल पे फेल हो रहे हो, तो यू आर जस्ट फेल्ड इन दैट लेवल या पेपर ओनली. आपको कभी भी ये नहीं बोला जाता एसीसी में जाकर कि अगर आप बीटी में फेल हो गए हो तो जाकर अपना नॉलेज लेवल पूरे का पूरा रिपीट करो दोबारा से. सो द सिंपल आस्क इन एसीसी इज कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स स्कोर करो एंड गेट पास. तभी जब अपने बात करते हैं पास रेट की, तो अब्रॉड का आप कोई भी प्रोग्राम उठा लो, आपको पास रेट कहीं ना कहीं 40 to 50% के बीच में मिलेगा. ग्लोबल पासिंग रेट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. तो कहीं ना कहीं तनिष्क, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा खुद का, राइट, कि जहां पर अगर अपने को लॉजिकल प्रोग्राम में जाना है, आई हैव सीन वन थिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एसीसीए क्लियर करना काफी हद तक आसान है. और एसीसी इज अ प्रोग्राम जहां पे 2 से 3 घंटे का डेली बेसिस का स्टडी चाहिए. इसके ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. क्या सिलेबस कम है? आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है. क्या क्या बोलते हैं आपने कि सर बहुत इजी है, या इसकी वैल्यू भी है मार्केट में? वैल्यू इज एज इक्वल टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट. If I talk about easy, yes, it is easy because they are very logical in nature, right? And the third answer would be कहीं ना कहीं, क्योंकि सीए में क्या है ना, आप कहीं ना कहीं थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस कर जाते हो. एसीसी इज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दैट चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो कि अभी तक आपने सीखा है पूरे का पूरा. एसीसी में जाकर आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो उसी कंसेप्ट को. ठीक है. या शुभाकर, इफ यू कैन आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, Pratham. So we have got few questions before starting the webinar. Students are asking us this kind of questions they want to address to this webinar. So the first question we have got, one of the student is asking, I am pursuing BCom from Delhi University and he is in second year. So his question is how many exemptions he can get and what will be the fees? Okay. So to answer this, any student pursuing their BCom फ्रॉम अ स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी. स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है? जैसे अपना मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी. आपको 5 पेपर का एग्जेम्पशन मिलता है: बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ पेपर एंड योर 6th पेपर विच इज टैक्सेशन. और अगर आप एसएससीआई के थ्रू रजिस्टर करते हैं एज अ न्यू स्टूडेंट, मतलब आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए एसीसीए बोर्ड के ऊपर कभी भी, यू मस्ट हैव नॉट हैव रजिस्टर्ड टू एसीसीए बोर्ड, तो आपका एग्जेम्पशन फीस इज 0. योर फर्स्ट ईयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 0, राइट. आई होप आई वॉज एबल टू क्लेरिफाई, शुभंकर. Yes, Pratham. So one another question we have got regarding the exemptions. So one of the students have given CA final 6 attempts, and like he's asking is, can you please tell me like how many exemptions they can claim? सो गेन द आंसर इज सुपर सिंपल. इन केस अगर आपका एफआर में 40+ मार्क्स आया है, तो आपका 7th पेपर एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. सी इंटर और बीकॉम के बेसिस के ऊपर 6 पेपर ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है. एफआर 40+, तो 7th पेपर एग्जेम्प्टेड. आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में 40+ है, तो आपका पीएम पेपर एग्जेम्प्टेड हो गया, तो 8 पेपर एग्जेम्प्ट हो गया आपके. और एएफएम में अगर आपका 40+ है, तो यू कैन क्लेम 9 पेपर एग्जेम्पशन इज. अगर 40 से नीचे है इन तीनों में, देन अकॉर्डिंगली आपका एग्जेम्पशन जाएगा कहीं ना कहीं. सो आइडियली यू कैन क्लेम अप टू 9 पेपर का एग्जेम्पशन. या शुभाकर. Thank you, Pratham. So another question we have got, someone has completed MBA Finance, plus he has cleared CA Group 2, and he has also completed BCom. So like how many exemptions he or she can claim? Okay. So just wanted to understand CA Group 2 when we talk about whether it's CA Inter का Group 2 or whether it is CA Final का Group 2. Final. Okay. So ideally, Vijay, I just need to check it out on the ACCA board, but most probably you will be getting almost 9 पेपर का exemption. Because जो आपके सब्जेक्ट्स आपके कोइंसाइड करते हैं आपके एसीसी के साथ, दोज आर इनटू योर ग्रुप 2 ओनली. You can claim up to 9 पेपर का exemption.
We can sit on after this particular webinar as well, in case if you want me to share my screen as well, we can just identify it then and there, right? Vijay will connect post this session. I can see your chat, right? We'll just connect post this particular into the Q&A once on. Yash Bankar, the next question. Yeah. Before coming to the next question, I just wanted to tell our participants, if you wanted to talk on this particular webinar, you can raise your hand and we will allow you to talk, and you can directly ask your questions and understand about that what your correct answer is. So simply you can raise your hand. Hey, hi Saksham, how are you? Good evening, sir. I'm fine. How about you? Very good evening. I'm doing great, Saksham. Thanks for asking. Yeah, please go ahead. Sir, I've just cleared my 12th and I was planning to pursue BCom integrated with ACCA. So, what's your view on it? Okay. See, one thing, I'll just tell you about it, Saksham. देखो कहीं ना कहीं when we do an integrated program ना, मतलब I do not want to comment on any XYZ university, but you do understand कि एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम लेने का पैटर्न क्या होता है और कितनी स्क्रूटिनी होती है उसमें. तो मेरे अकॉर्डिंगली इतना ज्यादा नॉलेज जो आपको कहीं ना कहीं एसीसी बोर्ड पे एग्जाम लिखकर मिलेगा या जो आपको एक एसीसी अप्रूव्ड प्रेप प्रोवाइडर सिखा सकता है, वो मेरे अकॉर्डिंगली आज भी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एक लैकिंग है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट, मैं कहीं ना कहीं एसीसी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम उस स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं जो शायद कहीं ना कहीं एसीसी के 2 या 3 अटेम्प्ट देकर फेल हो चुका. मैं उनको बोलता हूं कि गो इट एज अ बैकअप ऑप्शन. डेफिनेटली व्हाट एल्स यू कैन डू इज कि अगर आपको 9 पेपर का एग्जामिशन क्लेम करना है अपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट. बट साथ में जो आपके एसीसी पेपर्स का स्टडी है, प्लीज कंसिडर एन अप्रूव्ड प्रेप प्रोवाइडर डेफिनेटली, कि वहां पर आप जाकर एसीसी अपना स्टडी कर रहे हो और एटलीस्ट एसीसी के फाइनल मॉक पेपर दे रहे हो टू चेक आउट कि क्या आप एक्चुअल में नॉलेज ले भी पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो. वन थिंग, जस्ट एक एडवाइस दूं सबको, इट इज नॉट अबाउट डिग्री, इट इज नॉट अबाउट अ सर्टिफिकेट. द एक्चुअल गोल फॉर एवरीवन शुड बी कि मेरे को कैसे वो 25-30 lakhs का जॉब मिलेगा. एंड दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि आप नॉलेज लेकर अपना अप्लाई कैसे कर पा रहे हो इंडस्ट्री में, हाउ यू आर एबल टू स्ट्रेटेजाइज थिंग्स. Saksham, I hope I am able to clear out your query. Any Yes, other sir. queries you have? No, sir. Thank you. Thanks a lot, Saksham. Thank you so much, Saksham. And like Raj Kishore have raised his hand. Yes, Raj Kishore. Hi, Raj Kishore. Hi, Pratham. Yes. Actually, I have completed BCom and ICMI means Indian Cost Accountant Interpast, not final. And I Okay. have total 5 years of experience. And right now I'm working in IBM Consulting as R2R profile and corporate financial reporting team. And our client is one of the USA client, and that one related to meat food processing industry. So means no, I just joined IBM just 3-4 months ago. So I'm working in USA GAAP, IFRS in that related field. So after 3 years, I want to move into either GCC or big MNC. So Mhm. tell me how much paper I will get examined and what is the path. Yeah. Okay, I'll just tell you. So, looking at your profile, Raj Kishore, you'll be getting 5 paper exemption only, which are your first 4 paper and the 6th paper, which will be based on your BCom. Yes, in case if you must have been a CMA India qualified, like आपका पूरे का पूरा CMA India हो चुका होता, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट 9 पेपर एग्जाम मिलता, राइट? बट जितना टाइम अभी आप CMA इंडिया क्वालिफाई करने पे लगाओगे, इनकेस अगर आप फाइनल पे दोबारा से जाते हो, आपका कहीं ना कहीं, इफ आई एक्चुअली टेल यू कि अगर आपको फास्ट पेस पे एसीसी क्लियर करना हो तो आप 1 साल में भी क्लियर आउट कर सकते हो. सो एसीसी बोर्ड अलाउज यू कि आप मैक्सिमम 1 साल में 8 पेपर दे सकते हो. बट अगर आप आराम से एज अ वर्किंग प्रोफेशनल और लाइफ को एंजॉय करके अपना एसीसी क्लियर आउट करना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको 1.5 to 2 years का टाइम लगेगा. एंड यू जस्ट नीड टू राइट 8 पेपर्स इन दी अपकमिंग 6 to 8 एग्जाम विंडोज. सो दिस इज गोइंग टू बी योर पाथ. तो आपको 4 पेपर अपना स्किल लेवल में देना है, 4 पेपर आपको प्रोफेशनल लेवल में देना है. जो आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वो आपको दोबारा से नहीं करना. मतलब दैट इज डन एंड डस्टेड फॉर यू. Yeah. Okay. ठीक है. Thank you. Yeah. Thank you, Pratham. ओके राजकिशोर. या Hi everyone. Any other questions? Anyone? Please raise your hand and we will be like answering you.
And Pratham, there are other questions that comes up. Meanwhile, I can ask you that questions. Please go ahead. A simple question is raising up. What is the career path in ACCA? I hope you have answered it. And like students want to know if you can take it in more detail overall. सो एसीसी में वही है अपना कि 4 लेवल है। 9 पेपर के बाद आप एसीसीए पार्ट क्वालिफाइड बनते हो। 13 पेपर के बाद आप एसीसीए एफिलिएट बनते हो, राइट। 9 पेपर के बाद ही आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हो। इफ आई जस्ट टेल यू, शो यू समथिंग ना, so I had opened it actually for a person who was asking me about the exemptions part, right? I'll just quickly go to maybe let's say naukri.com, right? I do not want you to believe on me or someone else, right? If I just search ACC over here, select experience as a fresher, let's say if I just search, you will be able to see thousands of job as a fresher just for an ACC candidate, right? If I just simply go to my LinkedIn, just give me 1 second, right? If I search over here, maybe ACCA space CA, आपको इंडस्ट्री में, राइट, you Pratham, will your be able screen to see. is Sorry, my bad. Pratham, your screen is not shared for LinkedIn. Yeah, it's shared. My bad. So I have just, what I have done is I have just searched ACCA space CA on LinkedIn, right? You will be able to see thousands of profile who have done their ACCA and CA. Let's say अगर मैं एक सिंपल एक प्रोफाइल ओपन करूं, रैंडम प्रोफाइल, नथिंग ऐसा कुछ स्पेसिफिक। सो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा इवैल्यूएट करूं इनकी प्रोफाइल का, सो व्हाट शी हैज डन, 2017 में इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब अपना कंप्लीट कर दिया, 12 से स्टार्ट करा। वन थिंग आई कैन सी फ्रॉम हर प्रोफाइल इज कि उन्होंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया और विद इन 5 इयर्स अपना कंप्लीट कर दिया। फिर उन्होंने एसीसी किया स्टार्ट दिसंबर 2022 में, विद इन 1 ईयर शी गोट अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने 4 पेपर दिए। अब प्रोफाइल पे क्या हुआ, सो वाइल शी वाज डन विद हर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उनको जॉब सर्टिफिकेट मिल गया स्टारवेयर वायर इंडिया लिमिटेड में, 1 साल काम किया। फिर सीनियर अकाउंटेंट काम किया इको गार्डियन में, देन असिस्टेंट मैनेजर इन क्लाइंट रिपोर्टिंग 5 मंथ्स। देन जैसे ही वो अपने एसीसी की तरफ जाने लगी तो देन शी वाज वर्किंग इन वीडियो इंडिया। राइट नाउ शी इज वर्किंग इनटू अ यूके फर्म। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एन एसीसी एंड एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि इंटरनेशनल कंपनीज आपको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करती हैं। अगर मैं कोई और प्रोफाइल रेंडमली ओपन करूं, सी I just simply open the second profile only, और ये randomly open कर रहा हूं, please you guys can also do it. Again she became, see अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, what this student has done, right? इन्होंने अपना एसीसी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी दोनों चीजें इकट्ठी स्टार्ट कर दी। मतलब 2021 में she started with her chartered accountancy, in 2021 अगस्त में she started with her ACC, नवंबर 24 में उन्होंने अपना एसीसी कंप्लीट कर दिया, सितंबर 25 में शी हैज डन विद हर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो उनका कहीं ना कहीं वो है कि स्टार्टिंग में करियर पीडब्ल्यू से स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही अपना एसीसी साथ में लेकर चल रहे थे। तो व्हाट आई वांटेड टू शो यू ओवर हियर इज, व्हेन यू आर इनटू एसीसीए, तो आप अपने फर्स्ट 9 पेपर क्लियर आउट करने के बाद ही यू कैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग जॉब्स इनटू द बिग 4। आपको बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो बिग 4 देती हैं। एसीसी में एक और अच्छी बात है, जस्ट लाइक इन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल वी हैव आवर एआईआर, तो एसीसी में आपका एक नेशनल रैंक होता है जो कि आप जिस कंट्री से अपना एग्जाम लिख रहे हो, एक आपका ग्लोबल रैंक होता है। तो अगर मैं बात करूं हमारे फैकल्टीज की, मतलब जितने आपके फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, इधर दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड, इधर दे आर एसीसी मेंबर एंड अबव, इधर दे आर एफसीसीएस व्हिच आर लाइक फेलो मेंबर ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एंड दे आर फेमस थ्रू आउट इंडिया इन ब्रिंगिंग द रैंक होल्डर्स। और जब आप रैंक होल्डर आते हो, ट्रस्ट मी, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड है, आप रैंक होल्डर हो एसीसी में, कंपनी स्टार्ट अप्रोचिंग यू, you need not to go into a front of a company. I hope Shubhankar I was able to make sense, and I hope the doubt was clear. Sure, Gautam. The real life examples are quite understandable to everyone. So another question comes up. In case I don't want to pursue BCom after 12, what course should I go for and that is suitable for ACCA?
सी इफ आई जेन्युइनली टेल यू ना, आज की मतलब यू गाइस कैन, मतलब अच्छा नहीं लगता मैं बोलता हूँ, बट सीरियसली बताऊँ, आज के टाइम पे डिग्री की जो वैल्यू है ना मार्केट में, वो सिर्फ एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बन के रह चुका है। कि अगर किसी कंपनी ने लिख दिया कि मेरे को यूजी चाहिए स्टूडेंट का, या मेरे को एमबीए चाहिए स्टूडेंट का, तो अनडाउटली अगर मेरे पास नहीं है वो डिग्री, तो मेरे को कोई एंट्री भी नहीं देगा। सो दैट्स एन एंट्री पॉइंट। आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, वेदर इट्स बीबीए, वेदर इट्स आपका बीकॉम, जो भी आपको सबसे इजी लगे, go ahead with that degree and simultaneously start a commerce professional program, whether it's ACCA, whether it's CFA, whether it's CMAUS, whether it's FRM, CPA, कुछ भी करो, but please go ahead and do a commerce professional program and start working on the real industry skill set जो कि इंडस्ट्री डिमांड कर रहा है। आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाना आना चाहिए, आपको मार्केट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए कि कल को जाकर कंपनीज आपके ऊपर ट्रस्ट ले रही हैं कि ये पर्सन मेरी कंपनी के लिए डिसीजंस ले पा रहे हैं। यस शुभांकर। The next question we will get from him Mori, and the question is, sir, I am pursuing BBA. Do I get any exemption? No, basically him a BBA pursuing student, unless it is an integrated program with ACCA, you are not getting any exemptions. ट्रस्ट में एक चीज क्लियरली बताऊं, एग्जेम्पशंस अपने को सुनने को अच्छा लगता है कि चलो ठीक है यार, थोड़ा पेपर अपना मतलब इजी हो गया पाथ, बट अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग से राइट कर रहा है ना, पहले 4 पेपर का ग्लोबल पास रेट इज मोर देन 90% बाय द वे। मतलब बहुत रेयरली कोई बच्चा जो फेल होता है। एंड ट्रस्ट में जिस बच्चे का फाउंडेशन थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है ना, इट्स नथिंग बेटर देन दैट, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आई वुड रिकमेंड यू स्टार्ट विद द फाउंडेशन लेवल, पूरे का पूरा नॉलेज लेवल से स्टार्ट करो उसको, एंड गो अहेड विद स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल। आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा बिल्ड होगा। एग्जाम उस स्टूडेंट को क्लेम करना ज्यादा प्रेफर करता हूं मैं, कहीं ना कहीं सजेस्ट वहां पर करता हूं जहां पर दे आर ऑलरेडी इनटू द इंडस्ट्री। जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम ही नहीं है इस टाइम के ऊपर कि मैं आज के टाइम के ऊपर 2 2.5 3 साल एक कोर्स को नहीं दे सकता, तो वहां पर कहीं ना कहीं इसी से बोर्ड भी अंडरस्टैंड करता है कि हाँ, स्टूडेंट को एग्जामिशन दे दो एंड लेट देम जस्ट पास द रिमेनिंग 8 पेपर, 7 पेपर, 6 पेपर और 4 पेपर। Pratham, Yeah, Shubhankar. Neeraj has raised his hand. Yes, Neeraj, you Hey, can hi start. Neeraj. Hi, brother. So my question Yes, is Neeraj. that I am a CA chartered accountant. I have recently qualified. So I want to Congratulations. So can you please guide me how can I register with SSCI and what are the fees? What are the exam frequency? Like in ICI, it's held in twice in a year. So I believe there are 4 papers I have to give for ACCA. You just need to give SBL, SBL, and out of the last 4 papers, you just need to give any 2 papers. So Shubhankar, if you can just share my personal number as well, that would be great. My personal WhatsApp number. So Neeraj, if you can just drop a hi over there, it would be great, right? So I'll just guide you through the process. And Shubhankar, you can even share our the official SSCI number as well, which is 7595, right? So to answer you, Neeraj, so you will be getting the first 9 paper ka exemption, and your exemption fees will be just £15 per paper, 15। मतलब आपको एग्जामिशन फीस 135 देना है, जो एक्चुअल में अगर आप पूरा खुद से जाकर इसी से बोर्ड पे रजिस्टर करो तो यू माइट नीड टू गिव अराउंड 870 पाउंड्स। तो आपका स्ट्रेट अवे कहीं ना कहीं 780 अप्रॉक्स पाउंड्स कहीं ना कहीं वहां पर सेव हो जा रहा है, ठीक है। एसएससीआई की अगर मैं बात करूं, सो डेफिनेटली फीस एंड एवरीथिंग, शुभांकर कैन शेयर यू द लिंक फॉर दैट, यू कैन गेट इन टच ओवर देयर। मैं वेबिनार में फीस एंड ऑल ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, राइट। आई वांट टू कीप इट वेरी मोटिवेशनल सेशन एंड इन्फॉर्मेशनल सेशन। बाकी अपने बाद में आराम से कनेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स, अगर आपको पूरे का पूरा एसएससीआई का सर्विसेज समझना है मेरे से, कि हाउ वी कैन हेल्प यू आउट टू क्लियर योर एसीसी एग्जाम। Neeraj, can you hear me? Shubhankar, am I audible? Neeraj has written his voice is not clear. Yes, you are audible. I think Neeraj, you have got some network issue. Please check it over. So Neeraj, my personal WhatsApp number is written in the chat box to each one of you as well, right? In case if anyone wants to connect directly with me on WhatsApp, please just drop a text on WhatsApp. I might not be available on calls. You guys can connect with me anytime. The official SSCI number is also listed into the chat box, which is 75950 53300. So you can call on this number anytime, right?
our counselors will be picking up that call and they will be connecting with you shortly. They'll be guiding you about ACCA. You want to understand about CFA. अपने को किसी भी फाइनेंस प्रोग्राम के बारे में you want to get knowledge, our counselors are available. Shubhankar, any other doubts and things you want to Yeah, clarify? another question has comes up. So, like one of the student is asking, I am a BTech student pursuing final year from NSIT CSE. So, my interest lies in finance. My main target right now is CFA and later on CA. Please guide me on how much finance I need considering I am good in maths and poor and get scholarship too. Okay. See, first thing, if I generally want to answer this out now, मतलब मैं generally इसका आंसर करूं तो firstly just think about it from a career perspective. क्या आपका मन ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग की तरफ जाता है या आपको कोर फाइनेंस में जाना है? मतलब यू वांट टू बिकम अ कैपिटल प्रोवाइडर टुमारो, आपको फंड्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है, यू वांट टू बिकम अ फंड मैनेजर, हेज फंड्स में जाना है आपको, आपको पोर्टफोलियो मैनेजर जाना है, आपको कल को इक्विटी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, देन अनडाउटेडली यहां पर अपने पास दो करियर पाथ निकल कर आ गए हैं. अगर मेरा इधर वाली साइड इंटरेस्ट है कोर फाइनेंस में, गो अहेड एंड परस्यू अ सीएफए प्रोग्राम, राइट? अगर मेरा अकाउंटिंग या फिर मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिटिंग में इस सब में इंटरेस्ट आ रहा है, देन यस, यू कैन चूज आउट ऑफ 3 प्रोग्राम्स. वन वुड बी अ सीए प्रोग्राम, सेकेंड वन वुड बी एसीसीए प्रोग्राम, थर्ड वन वुड बी सीपीए प्रोग्राम. इट अगेन डिपेंड्स कि आपका किस लेवल पे आप अंडरस्टैंडिंग ले पा रहे हो. उस अकॉर्डिंगली आप कहीं ना कहीं अपना डिफिकल्टी लेवल अपना डिसाइड कर सकते हो. अगर मेरे को डिफिकल्टी लेवल वाइज इसको रखना हो तो आई वुड से एसीसीए इज द इजीएस्ट, देन इट वुड बी सीपीए इन टर्म्स ऑफ इजीनेस, and then there would be our Indian chartered accountant. Difficulty wise, it is totally whole different. And in terms of financial, Shubhankar, I would say for any international program, the overall budget required would be 4.5 to 5 lakhs odd, right? For our Indian programs, it is somewhere in between 2 to 2.5 lakhs. Yes, Shubhankar. So the next questions comes like, what should I do first, ACCA or CFA? If I wanna do both for setting abroad, if I do CFA now, I can complete ACCA while working a job. There's a question mark. Or should I do the reverse and also between ACCA and CPA, which would be better for CPA? It demands 1 year of masters. To I'm targeting countries like Canada, UK, US, Europe. Okay, let me just answer it out once. See, first thing to answer your query in terms of CFA and ACCA, again the same answer is there. If your interest is in core finance, म्यूचुअल फंड्स में जाना है आपको, इक्विटी में जाना है आपको, इक्विटी रिसर्च में जाना है आपको, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है, गो फॉर सीएफए प्रोग्राम. क्लियर, मतलब देयर इज नथिंग बेटर देन सीएफए अगर मेरे को इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है. अगर मेरे को ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग इन सब में जाना है, गो फॉर एन एसीसीए प्रोग्राम. ठीक है. अब क्या मेरे को साथ में दोनों करने चाहिए? मेरे को कौन सा पहले स्टार्ट करना है, दूसरा स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है? Both the programs demands 1.5 to 2.5 hours of daily studies, right? If I talk about दोनों मेरे को साथ में करने हो तो कहीं ना कहीं मेरे को 3.5 से 4 घंटा डेली बेसिस के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा. If you can manage that much time, start both simultaneously. अगर मेरे को सिर्फ एक पहले स्टार्ट करना है, राइट, जिधर मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है जौन सी फील्ड में, मेरे को वो स्टार्ट करना चाहिए. टू आंसर द सेकंड पार्ट कि मेरे को एसीसीए सीपीए में कौन सा चूज करना चाहिए, सो व्हाट डज सीपीए डज? सीपीए इज अ यूएस चार्टर्ड अकाउंटेंट मेनली आपका. ठीक है. तो आपको पर्टिकुलरली एक यूएस की स्टेट में, नॉट इन यूएस द होल कंट्री, जैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंट में आपको पूरे इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी मिलती है, यूएस सीपीए में आपको यूएस की एक स्टेट के ऊपर, वो भी बहुत बार क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेट का, क्योंकि जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कमी होती है, दे प्रेफर कि आप स्टार्टिंग में जाकर वहां पर काम करें, उधर जाकर आपको साइनिंग अथॉरिटी मिलती है. अनदर पार्ट, अगर आपका क्लाइंट बेस जो है वो यूएस की तरफ ज्यादा है, कनाडा की तरफ ज्यादा है, तो डेफिनेटली दे विल कंसीडर सीपीए मोर. बट अगर आपका क्लाइंट बेस ग्लोबल है, मिडल ईस्टर्न, यूके, यूरोपियन की तरफ ज्यादा है, और इंडिया में भी अगर है आपका क्लाइंट बेस, तो आई वुड प्रेफर गो अहेड विद एन एसीसीए प्रोग्राम. Yes, Shubhankar. Great, Pratham. So the next question we are getting in, Shreyas is asking, he recently completed CA.
For him, which path will be better? Completing ACCA 4 paper in coming 6 months, and that's like completed by year end full fledged, or doing ACCA along with a job, or like practicing some. Okay. See, first thing, to a chartered accountant who is done with their chartered accountant, if I genuinely talk about ना, मेरे पास सिर्फ 3 ही प्रोग्राम होते हैं उनको सजेस्ट करने के लिए। और अगर आप लिंक्डइन भी स्क्रॉल करोगे, मतलब फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई ऑल ऑफ यू ना, सबसे बढ़िया चीज है खुद से रिसर्च करना बैठकर। लिंक्डइन पे जाओ, सिंपल सर्च सीए स्पेस सीएफए, सीए स्पेस सीपीए, सीए स्पेस एसीसीए, और ये 3 ही प्रोग्राम है विच आई वुड रेकमेंड टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट एसीसीए में क्या है, कहीं ना कहीं आपका 70% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। क्यों? क्योंकि आपके 9 पेपर का एग्जामिशन मिल गया 13 में से, मतलब आपको ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस आपका डन है। इसके अलावा आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी सबमिट नहीं करना अगर आपका आर्टिकलशिप हो रखा है। अगेन, एज पर द न्यू आईसीआई रूल आपका 2 साल का आर्टिकलशिप है, तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करना पड़ेगा टू बिकम एन एसीसी मेंबर। डेफिनेटली परस्यू एसीसीए अलोंग विद योर जॉब। आपको एसीसी में सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की डेली बेसिस की स्टडी रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज मोर देन सफिशियंट। यस शुभंकर। Yeah, Pratham. So the next questions coming from Ananya, and she is asking, I am a BCom student and I would like to know like I should take exemption or not. So Nanya, generally if you want to ask me whether should I take it or not, अगर आपका बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, यू आर इन अ वर्किंग प्रोफेशनल, गो अहेड एंड टेक द एग्जामिशंस। बट अगर आपने जस्ट बीकॉम स्टार्ट किया है, राइट, और मे बी अगर पैसा सेव कर पा रहे हो कुछ एग्जामिशंस लेकर, यस देन आल्सो टेक एन एग्जामिशन। बट अगर आपको अपना बेस बिल्ड करना है, इफ यू वांट टू लर्न, तो मेरे अकॉर्डिंगली एग्जामिशंस लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। स्टार्ट विद योर फर्स्ट पेपर। वो जो नॉलेज आपको मिलेगा ना, जो आपको इसी से बोर्ड पे बैठकर जब आप एग्जाम लिख कर आओगे ना, जो अंदर से खुशी महसूस होगी, जो आपको अंदर से लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ अचीव कर लिया अपने करियर में, वो नेक्स्ट लेवल है। वो मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। Great, Padam. I think we have done with the Q&A, and like the chat box is like also look like we have answered everything. And like guys, if you Perfect. have anything, like you can raise your hands till now, or like we are ready to answer your doubts. Perfect, guys. No worries. If no one has not left with any other queries and everything, right? So Shubhankar has shared my personal WhatsApp number. You guys have the SSA number in case anyone wants my personal number from any of my counselors as well. They can help you with my office number, right? My WhatsApp is available on that particular number. You guys can always drop a text on my WhatsApp. I am available whenever I can just reach out to you. I can assure you one thing, जस्ट लाइक इन बिफोर दिस वेबिनार आई हैव शॉर्ट यू वन थिंग, कि आपको इस वेबिनार के बाद एसीसी को लेकर आपको क्लैरिटी पूरे का पूरा मिल जाएगा। एसीसी को लेकर आपको डाउट नहीं रहेगा। एंड आई होप मैंने किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी मिस आउट ना करा हूं, राइट? थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट शुभंकर। Yeah, just put on one question came as you said. So Shruti is asking how to choose 2 optional subject out of 4 in professional level. See, to answer that, if you want to make it a little easier, right, तो look at the pass percentage। तो आप कहीं ना कहीं AFM के साथ जा सकते हो, एंड आप ATX के साथ जा सकते हो, एडवांस टैक्सेशन एंड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। अगर आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ चीजें सीखनी है नहीं, देन गो अहेड विद ATX एंड AAA, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ोगे आप, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ोगे आप उसमें, राइट। तो दिस इज माय आंसर टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका कंप्लीट हो चुका है, या फिर जिनको 9 पेपर का एग्जामिशन मिल रहा है। या शुभंकर। Great. I think we are done with all of the queries. Yeah. Okay, guys. Thanks a lot. Have a nice day ahead. Have a great evening. Have a great weekend ahead. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, Pratham, for attending all this. And thank you so much, everyone, to join the session. Bye bye.